So today we shall learn to prepare provision for tax account and thereafter financing activities. Provision for tax account, when it will be prepared? When the additional information contains something about provision for tax. Any information regarding tax is given in the additional information, including provision for tax given in the balance sheet, right? Provision for tax of the previous year and of the current year. दो इंफॉर्मेशन तो वहां मिली आपको, एक एडिशनल में मिली है, तो कितनी हो गई? 3 इंफॉर्मेशन. Whenever 3 इंफॉर्मेशन आर गिवन, then we have to prepare provision for tax account, जिसमें या तो टैक्स पेड निकलेगा या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड निकलेगा, या तो प्रोविजन फॉर टैक्स पेड निकलेगा और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड. प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज एडेड इन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वहां पर ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड एंड टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में माइनस करते हैं. दो जगह इसका यूज. इफ इट इज नॉट गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, नथिंग इज गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो आपको बैलेंस शीट में दिए प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, तो उसमें क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर विल बी एडेड इन द net profit before tax, in the calculation of net profit before tax, and provision for tax of the previous year will be shown at the bottom, operating profit with minus, जब लास्ट में करते हैं. तो again I am telling, when it is given only in balance sheet, provision for tax previous year, provision for tax current year, then we will write it, where क्या उसका ट्रीटमेंट है? करंट ईयर प्रोविजन विल बी एडेड इन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी शोन एट द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ डिडक्शन लेस टैक्स पेड, that will be tax paid. If it is given in the additional information as well, अगर additional information में भी दिया है, तो फिर आपको क्या करना है? अकाउंट बनाइए. Prepare the provision for tax account. Provision for tax account will be prepared. Okay. It will also start from credit side, provision for tax account. By balance brought down, we will write the amount. ये previous year. Amount of the previous year. Here. These will be given in the balance sheet short term provision में, provision for tax, provision for dividend ऐसे दिया होता है उसमें. फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में
in the additional information, either of the two things will be given. Either of the two things will be given in additional information. Either tax paid during the year will be given in the additional information, or provision for tax made during the year will be given. Current year provision. So if provision for tax made is given, you will write here by करंट ईयर का है जो उसमें दिया होगा provision made during the year, additional information में ये given होगा, you will write it, then you will get the balancing figure to bank. And this is tax paid. This will be tax paid. Very, very important. This account is very important because this will be shown in two places. ये जो दो इन्होंने दिए हुए हैं ऑलरेडी प्रोविजंस, they will not be shown anywhere. जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं that will be shown. This one, ये भी यहां पर लिख देते हैं, this one will be shown कहां पर? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड होता है ना उसमें. प्लस in not net profit before tax in the operating activities. At last this tax will be deducted. In the operating activities, at last यहां पर लिख दिया less operating activities at last, and this one net profit before tax, when you will calculate, then you will add this provision for tax made during the year. Provision for tax made during the year. जो हमने वो अकाउंट बताया होगा उसमें पहले हमने प्रीवियस ईयर वाला लिखना है, उसके बाद सर ये लिखना है नीचे बिल्कुल. ये इधर नीचे, ये इधर, इन दोनों में से कोई एक चीज दी होगी. उन्होंने दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज दिस, तुमने यहां लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया, इसको माइनस किया, ये आंसर आ गया. अब अगर ये दिया है क्वेश्चन में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इट इज गिवन टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, नॉट प्रोविजन मेड, टैक्स पेड, देन यू विल राइट फर्स्ट दिस, देन यू विल राइट दिस टैक्स पेड, तो फिर आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड. हाँ, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, उसमें से ये माइनस, फिर ये आंसर आ जाएगा. दोनों, हाँ, दोनों में से, चारों में से 3 आइटम्स आर गिवन इन द क्वेश्चन. You have to calculate the fourth one. Fourth one will be the balancing figure. This is very, very important account, and it has to be made at first. क्योंकि मान लीजिए ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना सबसे पहले आपको जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यू हैव टू कैलकुलेट. उसके लिए ये प्रोविजन चाहिए जो कि आपने प्रॉफिट में से प्रिपेयर किया था. अभी तो लिखा है ना, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. This amount is deducted from profit and loss account, profit, therefore it has to be added back to the profit. That is why it is so very, very important account.
So financing activities of a business enterprises relates with the borrowing of funds, finance for the firm, borrowing of funds and its repayment. Dividend paid is always a financing activity. तो कॉपी में नोट करिए अपने. What are the items which will be shown in the financing activities? What are the items which will be shown in the financing activities? पैसे कहां से आएंगे आपके? कैश इनफ्लो. पहले लिखिए कैश इनफ्लो. कहां कहां से पैसे आपके पास आएंगे? नंबर 1, from issue of shares, both equity and preference shares. From issue of shares, which includes both equity shares as well as preference shares. Very clearly I am telling you, कोई उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. नंबर 2, issue of debentures. Debentures are long term borrowings. Long term borrowings है ये. When you issue shares, when the company issues shares, it is owner's fund, equity share capital, preference share capital, which are not redeemable also, which are not redeemable. Equity shareholders, preference shareholders, they are known as residual owners. Residual owners. In the lifetime of the company, the amount is not repaid. In the lifetime of the company, the amount is not redeemable. Preference shares are redeemed. Okay, so this owners fund क्या है? Shares है, only equity share and preference share. Number 2, पैसे कहां से कंपनी रेज कर सकती है? डिवेंचर्स. कंपनी कैन इशू डिवेंचर्स इन कैश एंड उसको कैश मिल जाता है. नंबर 3, loans raised. Loans raised can be from financing institutions also, financial institutions, or from banks. Bank loans or long term or short term. Any loans can be any short term, medium term, or long term also. और पैसे कहां से आ सकते हैं? इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट. वेरी इंपॉर्टेंट. बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, डू नॉट ट्रीट देम इन करंट liabilities. Okay, do not take them in current liabilities. Bank overdraft and cash credit, we have raised finance through these. बैंक लोन अगर आपका बढ़ रहा है, ओवरड्राफ्ट आपका बढ़ता है, you will write प्लस आपने पैसे लिए. बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अगर कम होता है तो इसका मतलब पैसा गया, आउटफ्लो. अब लिखिए आउटफ्लो ऑफ कैश. ये 4 आइटम बता दिए मैंने आपको. फॉर इनफ्लो ऑफ कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आउटफ्लो ऑफ कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नंबर 1, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. Payment for buyback of equity shares. When the shares, the issued shares are bought back by the firm, because maybe the market value of the shares is going down, right? So to save our reputation, the firm buy back its own shares. Number 2, payment for redemption of preference shares. Preference shares are redeemed. Redeemed means repayment. Redemption, REDEMPTION. Redemption of preference share. Redemption you can write in bracket repayment. Repayment. Redemption means repayment of preference shares. Same way, payment of redemption of debentures. डिवेंचर्स जो आपने इशू किए थे और डिवेंचर्स से जो मनी आपको मिला था, दैट हैज टू बी रिडीम्ड आफ्टर 5 years, 6 years, because it is a long term borrowing. But debentures are also redeemed after a fixed
पीरियड ऑफ टाइम। हर साल डिवेंचर्स पे कंपनी देती है इंटरेस्ट, 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। द प्रीफिक्स इंटरेस्ट बिफोर द डिवेंचर इज द इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। तो वो डिवेंचर पे इंटरेस्ट हम पे करते हैं। नंबर थर्ड, पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स और बोरोइंग्स। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, इन शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस which includes all the share issue expenses, है ना। And last is decrease in balance of bank overdraft and cash credit। decrease, decrease मतलब you have repaid, decrease means you have repaid bank overdraft or cash credit। what is cash credit? उधार, छोटा मोटा जो ट्रेडर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ट्रेड कैश क्रेडिट। इसके अलावा आपको इसमें बस इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। आप देखेंगे कि शेयर्स पिछले साल इतने थे, अब इस साल इतने हो गए, कितने बढ़ गए, यानी कि वो इशू हो गए। बैलेंस शीट में देखेंगे शेयर्स, डिवेंचर्स, बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिविडेंड पेड, राइट, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड अपने आप निकालेंगे उसमें। फिर उसके बाद व्हेन शेयर्स आर इशूड, शेयर्स आर इशूड एट पार और प्रीमियम। तो प्रीमियम पे जब शेयर इशू होता तो वट एवर शेयर्स आर इशूड उसमें प्रीमियम ऐड कर देंगे। अगर उसमें कोई ब्रोकरेज और कमीशन दी है वो माइनस कर देंगे। डिवेंचर्स आर इशूड एंड देन डिवेंचर्स आर रीपेड ऑल्सो। व्हेन डिवेंचर्स आर रीपेड दे आर रीपेड एट प्रीमियम ऑल्सो। 50,000 के डिवेंचर है एंड यू आर रीपेइंग इट एट 5% प्रीमियम, राइट। तो 50,000 को 5% निकाल के ऐड करके शो करेंगे माइनस, वहां पर दिखाना है उसको। क्वेश्चन में आपको बताता हूं, you will find it easier। ठीक हो गया। चलो 31st देखो, बोनस शेयर इशू किए तो मनी विल कम। टेक क्वेश्चन नंबर 31, illustration number 31, and you can see the data is given। इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गया क्वेश्चन। इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख एंड 8 लाख, प्रीवियस ईयर 6 लाख एंड करंट ईयर 8 लाख। इसका मतलब 2 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए। और नीचे भी देख लो इक्विटी शेयर पे क्या इंफॉर्मेशन दी है। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। 2 लाख का 15% प्रीमियम निकालेंगे आप। और नीचे लिखा है अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। इशू करते हुए कमीशन दिया, द एक्सपेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, 2 लाख प्लस 30,000 माइनस 10,000, उतना पैसा दिखाएंगे आप एज इनफ्लो ऑफ कैश। फिर देखिए प्रीफरेंस शेयर दिखाया, पिछले साल 2 लाख के थे, इस साल नील हो गए, यानी कि आपने क्या कर दिए, रिडीम कर दिए। 2 लाख से
it is nil. So we have redeemed. Redemption of preference share or preference shares are redeemed at a premium of 5%. तो 2 लाख का 5% निकाल लिया 10,000, यानी कि 2 लाख प्लस 10,000 आपने वापस कर दिया ऐसे थ्रू माइनस में शो होगा माइनस में. यस, whatever is outflow you will show in minus. बाद में सारे प्लस ऐड कर लीजिए, ऑल माइनस ऐड कर लीजिए और उनका डिफरेंस निकाल लीजिए. तीसरा दिया है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स. डिवेंचर इशू किए हमने, पिछले साल नील थे, दिस ईयर 1 लाख डिवेंचर्स के पैसे आएंगे. और नीचे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिवेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%. 1% उसमें माइनस कर देंगे डिस्काउंट. फिर लिखा है इंटरिम डिविडेंड पेड 90,000 माइनस हो गया. डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर 24,000 माइनस हो गया. इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स माइनस हो गया. दैट्स ऑल. कोई प्रॉब्लम है इसमें? वेरी वेरी सिंपल. बट यू हैव टू सी दैट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज रेड प्रॉपरली और कोई भी चीज स्किप ना हो जाए. इसमें छूट जाती कई बार कोई चीजें, वरना बेसिकली आपको याद रखना क्या है कि कितने कितने जगह पे मतलब क्या क्या चीजें इसमें जो है मैंने आपको लिखवाई. इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, एक बार उसको फिर से पढ़ के रिपीट करो एंड देन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 32. प्रैक्टिकल क्वेश्चन 32 इसका 32 है, मैं पढ़ दे रहा हूं कौन सा है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 32 ना 31 ही सही है और 31 32 मतलब दोनों क्वेश्चन जो है यू हैव टू सॉल्व. 12 लाख का 7 लाख यस, 12 लाख एंड 7 लाख. और दूसरा है इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख एंड 10 लाख. मिल गए? दीज आर द 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 इन द ओल्ड बुक, ये नीली वाली न्यू बुक. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31 और you start solving. We'll do it. Practical question number 31. Equity share capital 7 lakh से it becomes 12 lakh. 5 lakh rupees के equity shares are issued and they are issued at a premium of 2%. और उसमें 2.5% ऑन इशू प्राइस है. अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स पेड इज 2.5% एंड इक्विटी शेयर्स आर इशूड 5 लाख रुपीज. सो यू विल राइट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ equity shares 5 lakh plus premium premium is 2% minus 2.5% underwriting commission. 2.5% अंडरराइटिंग कमीशन. 5 लाख का 2.5% निकाल दो. 5 लाख ये वाला कितना ना 5 लाख का 10,000 तो प्रीमियम में इशू किया और अंडरराइटिंग कमीशन है 2.5%. 12,000 टोटल अमाउंट क्या लिख दो, कितना आ गया? Commission, any expense on issue of shares, any expense on issue of share
चाहे वो ब्रोकरेज है, कमीशन है, अंडरराइटिंग। 4,97,000 सर ये ऐड हो गया ना सर एक्सपेंस माइनस हो गया। 7,74 मतलब तुम शेयर्स इशू कर रहे हो और शेयर्स इशू करने के टाइम पे आपको एक कमीशन पे करना पड़ रहा है, तो पैसे कम नहीं मिलेंगे। ये जो प्रीमियम में शेयर इशू किए, प्रीमियम ऐड होगा उसमें, एंड ऑल टाइप ऑफ कमीशंस माइनस, कमीशन एक्सेट्रा, ऑल एक्सपेंसेस विल बी सब्ट्रैक्टेड। नंबर 2, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो गए। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना, 1,00,000, और उसमें 2% प्रीमियम भी दिया हमने, 1,00,000 प्लस 2% प्रीमियम 2,000, 1,00,000 प्लस होगा, उसमें प्लस होगा फिर शो माइनस। हाँ यहाँ को माइनस है पेमेंट। 1,00,000 के प्रीफरेंस शेयर्स रिडीम किए, रिडीम मींस रीपेमेंट, साथ में 2% प्रीमियम भी दिया, एक्स्ट्रा पैसे दिए 2%। डिवेंचर्स, 2,00,000 के डिवेंचर्स इशू हुए एट अ डिस्काउंट ऑफ 1% एंड 7% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। डिवेंचर 2,00,000 के इशू हुए 1% डिस्काउंट पे इशू। इशू ऑफ 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 2,00,000 में से माइनस कितना परसेंट, 1% डिस्काउंट, 2,000, 1,98,000। फिर आपने रिडीम किए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कौन सा डिवेंचर, 7%, दूसरा कैटेगरी है वो डिवेंचर। वी हैव रिडीम्ड हाउ मच, 1,00,000 कितने में, 5% प्रीमियम, 1,00,000 प्लस 5,000, जी 1,00,000 5,000। These are the debentures redeemed। फिर है आपका इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिवेंचर्स, 7,000। इंटरेस्ट पेड 7,000 निकाल के दे रखा, मतलब उन्होंने कैलकुलेट भी नहीं करना आपको। डिविडेंड पेड ऑन प्रीफरेंस शेयर्स 8,000, डिविडेंड पेड ये भी निकाल के दे रखा है 8,000। Outflow of cash will be shown as negative minus item and it will be shown in brackets. All inflow of cash positive. प्लस माइनस कीजिए इसे, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, प्लस माइनस कर लीजिए। It is inflow of cash. It is inflow of cash, as you can see. 47, 4,73,000. 250, 4,73,250। ये देखो युवराज, ऑल प्लस वाले पहले आप ऐड कर लीजिए, 497,500, 198, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। सर आया 695500। ओके, दैट इज 695500 माइनस 3.200।
ज्यादा होगा, 22200 और ज्यादा होगा, 22200 तो नहीं। ना सर 2,22,000 है सर, क्योंकि 1,02,000 को 1,05,000 से प्लस करा हाँ और फिर 7,000 और 8,000 प्लस 15, तो ये हो गया ना, देखो 2,07,000 एंड 15,000, 2,22,000, तो 2,22,000 000 आया ना। So when you subtracted inflow of cash and outflow of cash, 4,7,3,5. 250, how easy? You can very easily do these questions. Only thing is just see how many shares are issued, amount of shares issued, amount of debentures issued, पैसे आएंगे, प्रीमियम में इशू किया तो ज्यादा आएंगे, when you redeem them, प्रीमियम में रिडीम करेंगे, that premium you will be adding, commission and preliminary expenses will be subtracted, interest paid जरूर होगा, dividend paid जरूर होगा। इसमें अभी एक आइटम छूटा, interim dividend, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट वो नहीं आया, dividend which is paid during the year, it is proposed and paid during the same year, otherwise dividend is proposed in current year and paid in next year। इस साल प्रपोज करते हैं कि इतना डिविडेंड भाई हम आपको पे करेंगे शेयर होल्डर्स, द कंपनी डिसाइड्स इट इन द जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एंड देन इट इज पेड इन द नेक्स्ट ईयर, बट इंटरिम डिविडेंड इज पेड during the same year in which it is proposed and paid during the same year। तो interim dividend also इसमें आता है। अभी इसमें 2-3 आइटम रह गए, you should be very clear as to which items are left। इंटरेस्ट पेड आ गया, इसमें डिविडेंड पेड इज देयर, इसमें क्या नहीं आया, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट नहीं है आइटम, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है इसमें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, बट अदर एक्सपेंसेस देयर, कमीशन। इज इट इजी? नेक्स्ट कर लो। हाँ, we will do business। So this is 31 question, 31st and 32nd you can do, practice this। After this all the activities are over, now the combined question for investing, financing and operating activity relating to these 3 activities will start, and we shall solve these questions to understand the activities in a better way। Cash flow statement including all the accounts, including this provision for tax account which I have told you today, and plus this problem which is sold as an example for you। So I hope you will practice the questions and come back tomorrow। Thank you, God bless you। The writing and the writing